تو مولانا عمر صاحب کا بیان چل رہا تھا، وہ کہہ رہے چلو ایک ٹائم سے مٹی لے کے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں لایا، کچھ نہیں ملا تو مٹی لیا ہے، تم بھی نیت کر لو اگر وہاں پہ انسانوں کی کوئی آبادی ہوگی تو ہم وہاں بھی جماعت لے کے جائیں گے اور وہاں والوں کو نیچے لائیں گے دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، کیونکہ ہمارا مذہب عالمی مذہب ہے۔ مولانا عمر صاحب یہاں پہ بیان ہوتا تھا ان کا، سالوں بیان ہوا ہے جب تک وہ حیات رہے، ٹھیک ہے؟ چلو بات মুয়াজ্জিজ হযরত বলেন যে একটানা কথা বলে তো মজমুনটা ধরে রাখা যায়, বিষয়বস্তু ধরে, যখন তর্জমা মধ্যখানে চলে আসে তখন অন্য বিষয় চলে আসে মধ্যখানে, তো ওই চিন্তাধারা আর বাকি থাকে না। আমি বলতেছিলাম আসলে নামাজের কথা। নামাজের কথা আমি এটা বলতেছিলাম যে দেখেন, ফজরের নামাজ আমরা কখন পড়ি? সূর্য উঠার আগে পড়ি, জোহরের নামাজ দুপুরে পরে পড়ে, আসরের নামাজ আফটারনুন কিছুক্ষণ পরে পড়ি, মাগরিবের নামাজ সূর্য ডোবার পরে পড়ে, এশার নামাজ আরো একটু রাত্রে হলে পড়ি। আচ্ছা, যখন দিন ছোট হয়ে যায় তখনও এরকম, যখন দিন বড় হয়ে যায় তখনও এরকম। এখন দেখেন, মনে করেন যে এখানে এরকম ভাবে 12:30টার দিকে আমরা জোহর পড়বো, কিন্তু সেই সময় আমাদের পূর্ব দিকের দেশ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, তারা আরো 6 ঘন্টা আগে চলে গেছে, তাদের ওখানে এখন মাগরিব হবে। আর যদি এরকম ভাবে আমাদের পশ্চিম দিকে দেশ দেখেন, আমেরিকার দিকে দেখেন, ওদের দেশে তো এখন ফজরই হয় না, হয়তো তাহাজ্জুদ পড়তেছে। কিন্তু সবার জন্যই ওই একই নিয়ম, সূর্য ওঠার আগেই ফজর পড়তে হবে, সূর্য ডোবার পরেই মাগরিব পড়তে হবে। মানুষ যত উন্নতিই করুক না কেন, যেখানেই যাক না কেন, যত উপরেই উঠুক না কেন, নিয়ম একই। প্লেনে যাইতেছে, প্লেনে, উপরে প্লেনে যাচ্ছে, নিচে জমিনে যে আছে, মাটিতে যিনি আছে, উনি দেখতে সূর্য ডুবে গেছে, ইফতার করা শুরু করে দিয়েছে। আর যে প্লেনে দেখতেছে, সে দেখতেছে না এখনো সূর্য ডুবে নাই, সামনে দেখতেছে, উনি ইফতার করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার চোখে দেখা সূর্য ডুবতে না ডুবতে দেখতেছে। সূর্য ডোবার পরেই ইফতার করতে হবে। মুআজ্জিজ মেহমান এই কথা বলেন, আমাদের মাযহাব আলমী, সারা দুনিয়া সবার জন্য একই, সবার জন্য এক, আর সবার জন্যই আমাদের মেহনত, সবার জন্যই আমাদের এই কাজ। উনি বলেন যে 1967 সালে অ্যাপোলো 11 যখন চাঁদে গেলেন, ওই একই সময় এই খবর যখন দুনিয়াতে আসলো, নিজামুদ্দিন মার্কাজে আমরা ছিলাম, ওইখানে হযরত মাওলানা ওমর সাহেব পালনপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার বয়ান চলতেছিলেন। মাওলানা ওমর সাহেব পালনপুরি রহমতুল্লাহ আপনাদের এখানে কত বছর আসছেন, মৌতের আগ পর্যন্ত ওনার বয়ান হইতেই থাকতো, বছরের পর বছর ওনার বয়ান হয়েছে। উনি বলতেছিলেন ওইখানে যারা গেল, 3 জন গেল বনি আদম, ওখানে যা কিছু তো পাইলো না, কিছু মাটি পাইছে, মাটি নিয়ে আসছে, চলো ঠিক আছে, খুব ভালো। যদি কোনো জমানায় এই কথা শোনা যায় যে ওইখানে কোনো ইনসান আছে, আমরা ওইখানেই জামাত পাঠাই দেব, আর ওইখানে যে আমরা দাওয়াত জানাবো, আর তাদেরকে আমরা আমাদের নিচে নিয়ে মার্কাজে নিয়ে আসবো, আমাদের কাজের মধ্যে নিয়ে আসবো। মুআজ্জিজ মেহমান এই কথা বলেন যে দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় হোক না কেন, আমাদের দিন যেরকম এক, আমাদের মাযহাব যেরকম এক, আমাদের মেহনত সেরকম এক। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कोई तब्दीली, कोई चेंज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां कोई गड़बड़ करेगा फौरन पीछे से आदमी टोकेगा, ये क्या किया इमाम साहब ने, एकदम सुभान अल्लाह कहेंगे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा हुआ। देखो बात को मैं मुख्तसर कर रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, पहली सब के अंदर सारे समझदार दीनदार लोग हुआ करते थे। आपने फरमाया था, हमेशा के लिए फरमाई दी थी बात कि देखो मेरे आसपास तुम में से दीनदार समझदार पक्की लोग रहा करो, ताकि मेरी बात को समझे, उम्मत तक पहुंचाएं। तो आपके पीछे कौन खड़े होते हैं पहली सफ में? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, अव्वल मुहाजिर और अंसार के लोग, समझदार पढ़े लिखे, वो खड़े होते थे, पीछे आम लोग खड़े होते थे। मस्जिद पूरी भरी हुई है, आपने नमाज पढ़ाई और सलाम फेरा, रकातों में कुछ कमी बेशी हो गई,
आप एक रकात भूल गए और सलाम फेर दिया, 4 रकात वाली नमाज थी, 3 पे सलाम फेर दिया, तो आगे वाले तो सब अदब के अंदर खामोश रहे कि शायद हुजूर कुछ फरमाए। पीछे से एक आम सहाबी खड़े हुए, उन्होंने सवाल किया बहुत अदब के साथ कि अल्लाह के रसूल, क्या नमाज की तादाद में कुछ कमी बेशी हो गई है? वही तो नाजिल होती रहती, या आप भूल गए, या आप भूल गए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, उसकी बात सुनी और कहा कि ना तो कोई तब्दीली हुई है और ना मैं भूला हूं। भूलने वाले आदमी को थोड़ी पता चलता है, तो दूसरा बताता है उसको। तो उन साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, ये कह के वो बैठ गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा पहली सफ वालों से, भाई क्या कह रहा है ये आदमी? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से कहा अल्लाह के रसूल, हाँ 1 रकात छूट गई है, 1 रकात छूट गई, कम हो गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने दोबारा नमाज पढ़ाई। पूरी उम्मत को सिखाया गया कि तुम्हारी कामयाबी उस दीन में है 100% जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके सिखाया है, बताया है। মুআজ্জিজ মেহমান এই কথা ইরশাদ করেন যে যেই দিন আল্লাহ তাআলা নাজিল করছেন, যেই দিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শিখাই গেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত ওই দিন ওই জীবন ব্যবস্থার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না। আর কেউ যদি করেও অন্যরা এর অবশ্যই এটাকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করবেন। মুআজ্জিজ মেহমান এই কথা বলছেন আগে যে কিয়ামত পর্যন্ত দিন বাকি থাকবেন এবং সারা দুনিয়াতে অবশ্যই কোনো না কোনো এক ব্যক্তিরা থাকবেন, লোকরা থাকবেন, মানুষ থাকবেন এমন যারা হক পরস্ত হবেন, কোনো না কোনো থাকবেই এরকম। মুআজ্জিজ মেহমান এই কথা বলেন যে কোনো যদি আমার নামাজের তরিকার মধ্যেও যদি কোনো পরিবর্তন হয়ে যায়, ভুলে যদি হয়ে যায়, পিছন থেকে কেউ না কেউ লোকমা দিবেই দিবে, জোরে সুবহানাল্লাহ বলে দিবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এরকম হয়েছে, এটা এই জন্যই হচ্ছে যে কিয়ামত তক আনেওয়ালা মুসলমানকে, ইনসানকে শিখানোর জন্য 4 রাকাত বলে নামাজ পড়তেছিলেন, পড়াচ্ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনে তো তারাই থাকতেন যারা আকলমন্দ ছিলেন, ফকিহ ছিলেন, ফহমওয়ালা ছিলেন, বুঝবান ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হইতেন, ওমর ফারুক হইতেন, ওসমান গনি হইতেন, আলী কাররামাল্লাহু হইতেন, আব্দুর রহমান আউফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা একদম বড় ফকিহ সমঝদার সাহাবায়ে কেরাম হইতেন। তার পিছনে ওনাদের পরে তারপরে আম হযরতগণ হইতেন। 4 রাকাত ওয়ালি নামাজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 রাকাতের পরে সালাম ফিরাইলেন। প্রথম সাফওয়ালারা আদাবের কারণে চুপচাপ বসে আছেন। পিছন থেকে এক সাধারণ সাহাবী দাঁড়ায় বললেন, এই আল্লাহর রাসূল, ওহির জামানা তো, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে কি নামাজের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসছে? রাকাতে কোনো পরিবর্তন হয়ে কমি বেশি হয়ে গেছে? আল্লাহ তাআলা কি কোনো পরিবর্তন করে দিয়েছেন? হইতেই পারে, ওহি তো আসতেই থাকতো, নাকি আপনি ভুলে গেছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না, কোনো ওহি তো আসে নাই, নামাজের রাকাত তো ওই আছে, আর আমিও তো ভুলে যাই নাই। এটা এই জন্যই হয় যে ভুলে যায় সে তো বুঝতেই পারে যে আমি ভুলে গেছি। সে নিজে যদি বুঝতে পারতো তাহলে ভুল করতে কেন? আরেকজন তাকে স্মরণ করাই যে আপনি ভুলে গেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছন দিকে যারা ফকিহ, বুঝমান, সমঝদার হযরত ছিলেন, সাহাবায়ে কেরাম, ওদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো উনি কি বলতেছেন? আদাবের সঙ্গে হযরত সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কথা বললেন, হ্যাঁ 1 রাকাত কম হয়ে গেছে। এটা উম্মতকে এই জন্যই শেখানো হইল যে আল্লাহ তাআলা যে তরিকা, তরতিব, জীবন পদ্ধতি, দিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে মারহামত করেছেন, দান করছেন, উপহার দিয়েছেন, হ্যাঁ, কিয়ামত পর্যন্ত ওই দিন, ওই জীবন পদ্ধতির মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না, আর ওর মধ্যেই কামিয়াবি থাকবে।
इसी तरह रोजा है ना, रोजा कभी रोजा आएंगे मई जून के अंदर। हमारे यहाँ मई जून में सबसे लंबे दिन होते हैं इंडिया में, आपके यहाँ भी होते होंगे ना, और गर्मी होती है सबसे ज्यादा। और अगर रोजा इसमें आ जाए दिसंबर जनवरी में, दिन भी छोटा और सर्दी, प्यास लगती ही नहीं है, रात बहुत लंबी, खाने पीने का वक्त बहुत ज्यादा, रोजे का वक्त बहुत छोटा। तो हम बैठे हुए थे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास, मौलाना साद साहब के दादा साहब, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने बात बताई थी ना, अल्लाह ताला ने ये दावत और तबलीग का आलमी काम मौलाना इलियास साहब से शुरू फरमाया, अल्लाह ने शुरू कराया। अल्लाह ने, अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई नेक काम नहीं कर सकते हम। कोई बंदा अल्लाह की तौफीक के बगैर नेक काम नहीं कर सकता। फिर इम्तिहान का ही है कि तौफीक तो अल्लाह की होगी, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। मसलन हम फजर की नमाज के लिए आ रहे हैं या जोहर की नमाज के लिए आ रहे हैं, हम चल पड़े अपने घर से, मस्जिद तक पहुंचेंगे न पहुंचेंगे वो अल्लाह की तौफीक से पहुंचेंगे। रास्ते में पैर फिसल जाए और आदमी को दवाखाने जाना पड़ जाए, रास्ते में वो नहा धो के आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, ऊपर से गंदा पानी उसके कपड़ों पे गिर जाए तो कैसे आएगा मस्जिद में? उसको अपने घर जाके पाक साफी हासिल करनी पड़ेगी। तो अल्लाह की तौफीक से ही नेक काम किए जाते हैं। आप सबको अल्लाह यहाँ पे लाया है, अल्लाह की तौफीक से आओ, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी गुनाह से नहीं बच सकता आदमी को कोशिश करनी पड़ेगी बचने की, लेकिन अल्लाह तौफीक देते हैं। अल्लाह नेक करने वाले को नेकी की तौफीक देते हैं, गलत काम करने वाले को जो कुव्वत आती है वो भी अल्लाह की तरफ से आती है। समझो, इसलिए अजान का जवाब में सिखाई गई ये बात कि मुअज्जिन जो कहे सब नियत करो, अजान का जवाब दिया करेंगे इंशाअल्लाह। अजान करने लोग बातें करते रहते हैं, भाई बातें कर लो लेकिन जवाब तो दे दो। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो सुनने वाले भी कहें अल्लाहु अकबर। अब मुअज्जिन कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो हमको भी यही कहना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम भी यही कहेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान सुनते थे हजरत बिलाल की, तो हजरत बिलाल जब पढ़ते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और हुजूर मौजूद है, मस्जिद में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो आप कभी तो फरमाते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है। और जब वो हजरत बिलाल पढ़ते थे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आप भी पढ़ते थे वाना अशहदु मुहम्मद रसूलुल्लाह। कभी कभी आप ये कहते थे वाना 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 वाना, यानी मैं भी गवाही देता हूँ, मैं भी गवाही देता हूँ। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो उसके जवाब में क्या कहना पड़ेगा? वो आपने सिखाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई नेकी नहीं कर सकते अल्लाह की तौफीक के बगैर, किसी गुनाह से नहीं बच सकते अल्लाह की तौफीक के बगैर। ईमान सिखाया जा रहा है कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ, कि नमाज पढ़ेंगे हमारा इरादा है, वुजू करेंगे, चल कर जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तौफीक से होगा सबका, अल्लाह की मदद आएगी। वहदैनाहु नजदैन, अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते खोल रखे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे अल्लाहु अकबर, इसके जवाब में यही कहो, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। उसके बाद आपने फरमाया जो मुअज्जिन की अजान का जवाब दे, उसके बाद में मुझ पर दुरूद पढ़े, कोई से भी दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम। उसके बाद वो दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मति। जो आदमी ये अमल करेगा, आप सब नियत करो, मैं इस नियत से बता रहा हूँ कि अजान का जवाब दिया करेंगे इंशाअल्लाह। जो आदमी मुअज्जिन के अजान का जवाब दे और दुरूद शरीफ पढ़े और ये दुआ पढ़ ले, तो आप फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। अब हमने कॉलेज के लोगों को ये बात
बताए ना, तो हमारा वो स्टूडेंट खड़ा हुआ, सर मेरी मस्जिद में तो हमारे मोहल्ले में तो बहुत सारी मस्जिद है, चारों तरफ से आवाज आती रहती है, तो मैं किसकी अजान का जवाब दूं? मैं मेहनत से गया तो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अगर तूने जोहर की नमाज पढ़ ली, कहीं पे 1 बजे हो रही है, कहीं पे 1:15 बजे हो रही है, कहीं पे 1:30 बजे हो रही है, एक बार तूने पढ़ ली तो क्या बार बार पढ़ता है नमाज? एक बार पढ़ ली, फर्ज पूरा हो गया, खत्म। ये हर मस्जिद में जाया गया नमाज पढ़ेगा? ये ना, मैंने बस तो एक मस्जिद की अजान का जवाब दे दे, तेरा काम पूरा हो गया। समझ गया ना मेरी बात को? दीन आसान है, चारों तरफ से अजानों की आवाजें आती हैं, तो हमारी अजान जो होगी हमें उसका जवाब दे दो, उस वाली का देना है उसका दे दो, लेकिन नमाज की हालत में हो, वो अजानें हो रही हैं, आप जवाब दोगे? आप अपने इमाम के पीछे खड़े हो, दूसरी अजान हो रही। कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं गया हुआ था फॉरेनर्स कैंप के अंदर, हमने यहाँ की जो जमात हुई उसके पीछे हमने नियत बांध ली, सब लोगों ने बांध ली थी। उसके बाद में फिर ऐलान हुआ, माइक पे आवाज आ रही है, सफेद सीधी करो, पता नहीं कहीं और इज्तिमा के अंदर किसी और पंडाल में हो रही थी जमात। तो मैंने अब मैं परेशान, वही हमने नियत से ही बांधी है, ये नमाज शुरू हुई। अब नमाज तो पढ़ ली, बाद में पूछा, मैंने नहीं, हमने तखत वाली नमाज पढ़ी है, वो दूसरी जगह नमाज हो रही है वो। खैर, अब इसका भी माइक की वजह से ना, इसका भी इंतजाम करो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। 2 नमाजें एक साथ, मगरिब की नमाज थी। खैर, क्या बात कर रहा था मैं? अजान के बाद एक ही मस्जिद में पढ़ते हैं नमाज। हाँ, नहीं वो तो बात कर ली इंशाल्लाह। वो आ गई बात, आ गई अब आ गई। तो ये जो मैंने आपको बात बताई ना, अपने बच्चों को ही बताओ, औरतों को ही बताओ। औरतें भी 5 वक्त की नमाज के एक बार अजान का एक बार जवाब दे दे, एक बार नमाज पढ़नी है, तो उनके लिए भी वही सारी बशारतें हैं जो मर्दों के लिए हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो देखो, वो गर्मी का जमाना था, लंबे दिन थे, रोजे चल रहे थे, मई जून का जमाना था, मैं भी तो छोटा था, पढ़ता था उस जमाने के अंदर। मौलाना यूसुफ साहब